Hello students, today I am going to teach you light, and basically the chapter light is a unit and it is divided in three parts: refraction of light at plane surface, refraction through a lens, and spectrum. This video is going to be a bit long, but I am going to complete the entire unit light within this same video so that you won't have any trouble and you can easily complete this unit. And it is a really important chapter. The entire unit is very important for your board examinations as well as for your further studies if you want to choose science in 11th or 12th. So you have all studied about reflection in class 9th. You have studied maybe a bit about refraction when you were in class 8th. So now we are going to talk here about refraction. So what is refraction? The change in direction of the path of light when it passes from one medium to another medium is called refraction. Basically what does refraction means? That the path of light, it gets deviated, it shifts from its original path and it moves either towards the normal or away from the normal. This is known as refraction. So how will you remember when the ray will come towards the normal, when it will go away from the normal? So when it is coming from denser to rarer, denser to rarer, so denser is D, rarer is R, it makes is DR, which is short form of doctor. तो डॉक्टर से हर कोई दूर भागता है, क्यों भैया? बीमारी ना हो उनको. तो when it is coming from denser to rarer, it is going away from the normal, and when it is coming from rarer to denser, R, again it's rarer, D means denser, so RD is type of savings. और पैसा बचाना किसको नहीं पसंद है, सब चाहते हैं मेरी बहुत सेविंग्स हो, ये वो, तो पैसे की तरह हम लोग भागते हैं. तो RD से आप इसको कर सकते हैं कि RD के टूवर्ड्स जाएगा. अगर आपको RD वाला अजीब लग रहा है, आप DR डॉक्टर वाला अगर आप ध्यान रख लो कि DR मतलब डेंसर से रेयर जाने में वो अवे जाएगा, तो आप बस उतना याद रख लो, आपको आराम से याद हो जाएगा. ये मेरा एक तरीका था याद करने का. अब मुझे नहीं पता आप लोगों को पसंद आएगा कि नहीं, बट it is a easy way to remember when the ray of light will go towards the normal, away from the normal. Now, what is cause of refraction? Why refraction happens? So when a ray of light passes from one medium to another medium, its direction of path changes because of different speed of light in different media. Okay. In passing from one medium to another, if the light slows down, it will bend towards the normal, and if the light speeds up, it bends away from the normal. So basically this is the cause of refraction of light. Now, laws of refraction. So there are two laws. The first one, the incident ray, the refracted ray, and the normal all lie at the same plane. This is your first law. The second one is the ratio of sine of angle of incidence to that of sine of angle of refraction is constant for a given pair of media, that is sin I by sin R is equals to constant, and this constant it will be for a given pair of media. Now, refractive index. What is refractive index? The refractive index of second medium with respect to first medium is defined as the ratio of sine of angle of incidence in first medium to the sine of angle of refraction in the second medium. So this is known as refractive index. Refractive index basically रेशियो होता है जो साइन ऑफ एंगल है, जो एंगल पहले था और जो एंगल अब हो गया है रिफ्रैक्शन के बाद, उन दोनों का ही रेशियो, उसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती. क्यों? क्योंकि अगेन इट इज़ अ रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज. सो रेशियो की कभी कोई यूनिट नहीं होती. अब there is a relation
that is refractive index, equal to c upon v. c is the speed of light in air, whereas v is the speed of light in vacuum. So this is a short relation. And for a transparent medium, the refractive index will always be greater than 1. Okay, now effect on speed, wavelength and frequency due to refraction of light. So when a ray of light gets refracted from a rarer to denser, the speed of light decreases, while if it is refracted from denser to rarer, the speed of light increases. R से D जाएगा तो डिक्रीज़ होगा, और D से R जाएगा तो इंक्रीज़ होगा. ऑब्वियस सी बात है, जहाँ डेंस होगा वहाँ पे चलने में दिक्कत होगी, रेयर में दिक्कत नहीं होगी. तो जैसे मतलब इसको आप ऐसे समझो, आप साइकिल चलाते हो, जब सड़क पे थोड़ी भीड़ होती है तो साइकिल आप धीरे चलाते हो. जैसे ही आपको खाली सड़क पे चलाते हो आप तेज़ 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 से साइकिल चलाने लगते हो. तो बिल्कुल इसका भी कॉन्सेप्ट वही है. दूसरा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द सोर्स ऑफ लाइट, सो इट डज नॉट चेंज ऑन रिफ्रैक्शन. ठीक. इफ़ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एंड लैम्डा ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, सो द फ्रीक्वेंसी विल बी v इक्वल टू एफ लैम्डा. और ये जो फॉर्मूला है आपका v इक्वल टू एफ लैम्डा, यू कैन नॉट इग्नोर दिस v इक्वल टू एफ लैम्डा, क्योंकि v इक्वल टू एफ लैम्डा बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट वन, when a light passes from rarer to denser, the wavelength will decrease, but if it moves from denser to rarer, the wavelength will increase. But on both the cases, the f, which is our frequency, it remains unchanged. Now factors affecting refractive index. First, the nature of medium, that is its optical density. As smaller the speed of light in a medium relative to the air, higher is the refractive index. मतलब जितनी स्मॉल स्पीड ऑफ लाइट होगी मीडियम में रिलेटेड टू एयर, उतना ही ज़्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा. सेकेंड, फिजिकल कंडीशंस जैसे टेम्परेचर. विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इंक्रीजेज, सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल डिक्रीज. टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ लाइट बढ़ेगी, स्पीड ऑफ लाइट बढ़ी तो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, डिक्रीज हो गया. तीसरा, कलर ऑफ वेवलेंथ. द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ ऑल कलर इज सेम इन वैक्यूम, बट इन एनी अदर ट्रांसपेरेंट मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स. In a given medium, the speed of red light is maximum and that of violet is least. तो ये हमारे कुछ फैक्टर्स थे जो इफ़ेक्ट करते हैं हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को. प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट इज़ रिवर्सिबल. अब प्रिंसिपल रिवर्सिबिलिटी ये कहता है कि जो हमारा पाथ है लाइट के रे का, वो रिवर्सिबल है. अब वो रिवर्सिबल है तो कैसे है और उसका भी मतलब क्या प्रोसीजर है. सो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में आप ये चीज़ देखिए, अगर 1 म्यू टू इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन, दैट इज़ इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू वी वन अपॉन वी टू, इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लें. 2 म्यू वन इक्वल टू म्यू वन बाई म्यू टू इक्वल टू साइन आर अपॉन साइन आई इक्वल टू वी टू बाई वी वन, इसको इक्वेशन 2 ले लें. तो इक्वेशन 1 और 2 को आप मल्टीप्लाई कर लें आपस में, तो आप देखिए 1 म्यू टू इंटू 2 म्यू वन साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई, कट के ये हमको देगा 1. तो इसका मतलब है ये दोनों आपस में से, और इसका एक रेसिप्रोकल रिलेशन जाएगा कि 2 म्यू वन इक्वल टू 1 अपॉन 1 म्यू टू. सो इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2, so it means the refractive index of air with respect to glass will be 2/3. so ये एक तरीके से एग्जांपल है ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी. नेक्स्ट है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक. तो अब ये डायग्राम में आप देख सकते हैं ग्लास ब्लॉक है. जब सबसे पहले ये रे इंसिडेंट हुई तो ये रेयरर था, डेंसर मीडियम में आया तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल यहाँ शिफ्ट हुआ. अब ये रे जब सीधी आई तो ये रे एक बार फिर से
रिफ्रैक्शन हुआ यहाँ पे, फिर से एक नॉर्मल हुआ और अब की ये जो है अवे फ्रॉम द नॉर्मल गई। तो जो हमारी इमर्जेंट रे है वो ऐसे निकली। जो हमारी ओरिजिनल रे थी, अगर रिफ्रैक्शन होता ही ना, वो सबसे पहली रे थी, वो कहाँ निकलती है, और इन दोनों के ही बीच में हम लोगों का एक गैप आ जाता है और इसी गैप को हम लोग कहते हैं हमारा लैटरल डिस्प्लेसमेंट। मतलब एक्चुअल में रे ऑफ लाइट कहाँ होनी चाहिए तो यार एक्चुअल में कहाँ है, तो यही होता है द डिस्टेंस बिटवीन द पाथ ऑफ द इमर्जेंट रे एंड दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड द लैटरल डिस्प्लेसमेंट. Now the lateral displacement depends upon the thickness of block, angle of incidence and the refractive index of whatever the media is. Here we have taken glass, so glass. Okay. Now how it is on thickness, more the thickness, more is the lateral displacement. Angle of incidence पे कैसे, more the angle of incidence, more is the lateral displacement. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर लें, मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर इज़ द लैटरल डिस्प्लेसमेंट. तो ये तीनों ही आसान है, एक ही तरीके से हैं, आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको आराम से हो जाएगा. इसके बाद मल्टीपल इमेजेस इन अ थिक प्लेन ग्लास प्लेट. कभी आप बार्बर की शॉप पे जाओ तो मतलब ऐसा होता है, तो अब मैं आपको बताता हूँ क्यों होता है, क्या होता है. तो कभी आप बार्बर की शॉप पे गए हो तो मतलब बहुत सारी मल्टीपल इमेजेस बनती हैं. तो if a pen or an illuminated object is placed in front of a thick plain glass plate or a thick mirror and is viewed obliquely, a number of images are seen. Out of these images, the second is the brightest while the other of decreasing brightness. तो ऐसा होता है कि क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेते हैं एक बार कि जब बहुत सारी मल्टीपल इमेजेस बनती हैं तो जो सेकंड इमेज बनती है वो सबसे ब्राइटेस्ट क्यों बनती है. वो सबसे ब्राइटेस्ट बनने का उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि जो सेकंड वाली है, जो सेकंड इमेज है वो ब्राइटेस्ट इसलिए होती है क्योंकि वो सबसे पहली इमेज होती है जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से सफ़र हो करके बनती है, और वो स्ट्रॉन्गेस्ट होती है क्योंकि वो सबसे स्ट्रॉन्ग फर्स्ट रिफ्लेक्शन हुआ है सिल्वर सरफेस से. उसके बाद उसी की हेल्प से आगे वाली जो इमेजेस हैं वो रिफ्रैक्शन से और रिफ्लेक्शन सफ़र करती हैं. तो ये राइज तो दे देता है कि मल्टीपल इमेजेस फॉर्म हो जाती है, लेकिन ये जो आगे की इमेजेस बनती हैं ये ग्रेजुअली डिक्रीजिंग ब्राइटनेस की होती हैं दैन द फर्स्ट इमेज. तो यही रीज़न है कि क्यों वो सेकेंड वाली इमेज हमारी सबसे ज़्यादा लंबी इमेज होती है. प्रिज्म. अब हम लोग बात करेंगे प्रिज्म की. तो प्रिज्म क्या है? A prism is a transparent refractive medium which is bounded by 5 plane surfaces with their triangular क्रॉस सेक्शन. तो ये होता है एक प्रिज्म. हमारा प्रिज्म बेसिकली यही हमारा रिफ्रैक्शन समझाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. अब डेविएशन बाय अ प्रिज्म, अब ये रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, ये जो है इसमें एक डेरिवेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है. तो सबसे पहले तो ये डायग्राम आप देख लीजिए. तो इस डेरिवेशन में आप देखो एंगल ऑफ डेविएशन को यहाँ पे डेल्टा ले रहे हैं हम लोग. तो डेल्टा है हमारा एंगल एम पी क्यू प्लस एंगल एम क्यू पी, दैट इज़ डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2. इसको हम एक इक्वेशन मान रहे हैं. तो सिंस एंगल एम पी एन हमारा I1 है, दैट इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एम क्यू एन हमारा I2 है, तो एम पी क्यू हमारा φ1 है, दैट इज़ I1 माइनस R1. एम क्यू पी हमारा φ2 है, दैट इज़ I2 माइनस R2. तो फाई हमारा होगा I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2. माइनस कॉमन ले लें तो I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2. अब क्वाड्रिलेटरल की बात कर लूँ, ए पी एन क्यू में हम लोग जाते हैं. तो एंगल ए पी एन इक्वल टू एंगल ए क्यू एन, दोनों 90 हैं. एंगल पी एन क्यू प्लस एंगल पी ए क्यू 180 के इक्वल है. तो पी ए क्यू हमारा ए है, तो पी एन क्यू हमारा 180 माइनस ए हो गया. इसको हमने एक और इक्वेशन मान ली. फिर हम लोग जाते हैं ट्रायंगल पी एन क्यू में. तो ट्रायंगल पी एन क्यू में एंगल पी एन क्यू होगा 180 माइनस R1 प्लस R2. अगेन 180 माइनस R1 प्लस R2 इक्वल टू 180 माइनस ए. अब यहाँ से क्लियरली आपको पता चल गया कि R1 प्लस R2 ए के बराबर है, तो हमने इसको इक्वेशन मान के रख लिया. और φ1 है हमारा I1 प्लस I2 माइनस ए. तो यहाँ से हमको एक रिलेशन मिल गया, I1 प्लस I2 इक्वल टू हमारा डेल्टा प्लस ए. तो इसी के साथ ये डेरिवेशन है. ये डेरिवेशन आपको आनी चाहिए. डेरिवेशन मैंने आपको दे दी है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें, जो कर लें आप उसको पढ़ लें. नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंगल ऑफ डेविएशन. सबसे पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस, दूसरा मटेरियल ऑफ प्रिज्म या फिर हम कह सकते हैं हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तीसरा एंगल ऑफ प्रिज्म, और चौथा कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज़. तो यहाँ पे आप
एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आई और डेल्टा के बीच एक ग्राफ है, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसका कब आप ध्यान रखिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन के बीच एक ग्राफ प्लॉट होता है, तो ये ग्राफ आपको पता होना चाहिए। नाउ रियल डेप्थ एंड अपीयरेंट डेप्थ। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन अ डेंसर मीडियम when viewed from a rarer medium appears to be at a depth lesser than its real. This is because of refraction of light. होता ये है कि पेंसिल या पेन कुछ भी लीजिए, उसको आप किसी ग्लास में थोड़ा गहरा हो पानी के साथ डुबो लीजिए, फिर उसको अब आप देखिए तो पेंसिल आपको टिल्टेड दिखेगी। तो यही जो हम लोगों को होता है, ये होता है हमारा रियल डेप्थ, जो एक्चुअल में उसकी डेप्थ है, और अपीयरेंट डेप्थ जो हमको लग रही है। तो ये इसी को हम लोग कहते हैं रियल एंड अपीयरेंट डेप्थ। अब अगर हम लोग बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एयर की विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, तो वो होता है रियल डेप्थ अपॉन अपीयरेंट डेप्थ। और अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है शिफ्ट, मतलब कितना गैप है, क्या है रियल और अपीयरेंट डेप्थ में। तो शिफ्ट हमारा निकलता है रियल माइनस अपीयरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ माइनस अपीयरेंट डेप्थ। और शिफ्ट का एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज शिफ्ट इक्वल टू रियल डेप्थ इंटू 1 माइनस 1 अपॉन दैट इज़ आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू मीडियम। तो ये होते हैं। अब शिफ्ट जो होता है ये डिपेंड किस पे करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे करेगा, जैसा फॉर्मूले में है, थिकनेस ऑफ द डेंसर मीडियम, और कलर या वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट। इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही ज़्यादा शिफ्ट होगा, जितना थिकर मीडियम होगा उतना ज़्यादा शिफ्ट होगा, और शिफ्ट डिक्रीज़ करेगा अगर वेवलेंथ ऑफ लाइट बढ़ेगी। अब हमारे दो लास्ट टॉपिक, क्रिटिकल एंगल और TIR, मतलब ऐसे अभी तो और टॉपिक्स हैं हमारे। तो क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसे हम TIR बोलते हैं। व्हाट इज़ क्रिटिकल एंगल? Critical angle is the angle of incidence in the denser medium for which the corresponding angle is equal to 90 डिग्री। मतलब ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो जब हमारा रिफ्रैक्शन का प्रोसेस हो तो 90 डिग्री पे जाए, वही हमारा होता है क्रिटिकल एंगल। इसी के साथ हम लोगों का एक रिलेशन होता है बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। बहुत छोटा सा है। इसके बाद गाइस फैक्टर इफेक्टिंग क्रिटिकल एंगल में क्या है? डिपेंडेंस ऑन द कलर ऑफ लाइट और डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर पे कैसे? टेम्परेचर बढ़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा तो क्रिटिकल एंगल उस पेयर ऑफ मीडिया के लिए बढ़ जाएगा। डिपेंडेंस ऑन कलर ऑफ लाइट कैसे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ट्रांसपेरेंट मीडियम का डिक्रीज होता है विद इंक्रीज इन वेवलेंथ, देयरफॉर द क्रिटिकल एंगल फॉर अ पेयर ऑफ मीडिया इज लीस्ट फॉर वॉयलेट एंड मोस्ट फॉर अ रेड कलर। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा TIR, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो क्या है? When a ray of light traveling in a denser medium is incident at the surface of a rarer medium at the angle of incidence greater than the critical angle for the pair of media, the ray will get totally reflected back into the denser medium and this phenomena is known as total internal reflection। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्रिटिकल एंगल क्या है, तो ग्लास के रिस्पेक्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो ग्लास के लिए 42 डिग्री होता है हमारा क्रिटिकल एंगल, और अगर मैं बात करूं वाटर के लिए तो वाटर के लिए अप्रॉक्सीमेटली 49 डिग्री के आसपास होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब एसेंशियल कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, द लाइट मस्ट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर ही मूव करनी चाहिए TIR के लिए। दूसरा, द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर दैन द एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल फॉर द पेयर ऑफ मीडिया। मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर 42 डिग्री होता है और वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर 49 डिग्री होता है। तो इन दोनों के लिए अब आप समझ सकते हैं कि क्रिटिकल एंगल क्या होगा, उससे ज़्यादा होना क्यों ज़रूरी है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर, इन दोनों के बीच ही डिफरेंस आपको पता होना चाहिए क्योंकि इनके डिफरेंस आपसे पूछ लिए जाते हैं।
एक तरीके से एक पार्ट ख़त्म होता है। रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस पे अब हम लोग आएंगे। तो लेंस क्या होता है? अ लेंस इज़ ए ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय आइदर टू स्फेरिकल सर्फेसेस और वन सरफेस स्फेरिकल एंड द अदर वन इज़ प्लेन। दो तरीके के हमको लेंस मिलते हैं, एक कन्वर्जिंग या कॉन्वेक्स लेंस, दूसरे डाइवर्जिंग या कॉन्केव लेंस। तो कन्वर्जिंग या कॉन्वेक्स लेंस हमारे तीन तरीके के होते हैं, बाई कॉन्वेक्स, प्लानो कॉन्वेक्स और कैनकेवो कॉन्वेक्स। डाइवर्जिंग या हमारे कॉन्केव लेंस भी तीन तरीके के होते हैं, बाई कॉन्केव, प्लेनो कॉन्केव या कॉन्वेक्सो कॉन्केव। अब कुछ टॉपिक्स जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ द स्फीयर हुज पार्ट इज द लेंस सरफेस इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट सरफेस ऑफ द लेंस। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन थी, आपको याद करनी है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? द रेडियस ऑफ द स्फीयर हुज पार्ट इज द लेंस सरफेस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ टू सर्फेसेस। ऑप्टिकल सेंटर, it is a point on the principal axis of the lens such that a ray of light passing through this point emerges parallel to its direction of incidence। मतलब ऑप्टिकल सेंटर आपको याद रखना है एक ऐसा पॉइंट रे ऑफ लाइट के, इस पॉइंट पे जो भी रे ऑफ लाइट जाएगी वो पैरेलल निकल जाएगी अपनी जो इंसिडेंट रे है उससे। फोकल लेंथ क्या होती है? दो फोकस होते हैं, किसी भी लेंस के दो फोकस होते हैं, उन दोनों फोकल पॉइंट मतलब उन दोनों फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस के बीच का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। इसके बाद गाइस हम लोग बात कर लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय लेंस। तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज में रियल इमेज होती है, वर्चुअल इमेज होती है, दो तरीके की इमेज होती हैं। If rays from a point of object after refraction through the lens actually meet at a point, then the image formed is known as real image. Or virtual की, if the rays of light from a light of object after refraction through the lens do not actually meet at a point, but they are appeared to be meet, then such a image is known as virtual image। तो real image में जो रिफ्रैक्शन के बाद जो रेज होती हैं वो एक्चुअली कहीं पे मीट करती हैं, और वर्चुअल में वो मीट नहीं कराती हैं बट दे अपीयर टू बी मीट, मतलब तो वहाँ पे हम लोग कहते हैं कि वो वर्चुअल इमेज है। अब रे के केसेस हैं, अब आप लोगों को वो केसेस पढ़ने हैं। कॉन्वेक्स के 6 केस होते हैं जो आपको आने चाहिए, और कॉन्केव के 2 होते हैं। तो अब मैं आपको रे डायग्राम्स यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ, रे डायग्राम्स बताने का ज़्यादा कोई सेंस है भी नहीं। अब हम लोग बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, साइन कन्वेंशन और लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला मैं आपको बता दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो लेंस फॉर्मूला है 1/v - 1/u = 1/f। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि v हमारी डिस्टेंस ऑफ इमेज है, f हमारी फोकल लेंथ है और u हमारा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो कॉन्वेक्स लेंस की मैं पहले बात कर लूँ। तो कॉन्वेक्स लेंस के जो लेफ़्ट साइड और राइट साइड, आप मान लीजिए लेफ़्ट साइड है उसको हम लोग नेगेटिव लेते हैं, जो राइट साइड है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। दूसरी चीज़ कॉन्केव की बात कर लूँ तो उसमें भी हम लोग सेम यही करते हैं। अब साइन कन्वेंशन सब मैं बताता हूँ आपको हम कैसे लेंगे। जो हमारा u होता है, u हम लोग हमेशा u को ऑलवेज़ नेगेटिव लेते हैं। v को मैंने आपको बताया कि हम लोग डिपेंड करता है लेफ़्ट और राइट पे, लेफ़्ट होगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव राइट होगा तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे। फोकल लेंथ भी अगर फ्रंट बोल रहा है तो पॉजिटिव, फ्रंट नहीं बोल रहा है तो हम फोकल को भी नेगेटिव लेंगे। तो ये तो हमारे हो गए साइन कन्वेंशन। न्यूमेरिकल में आपको साइन कन्वेंशन से हेल्प करते हैं, जब अलग से वीडियो उसकी आएगी तो उसमें आपको और डिटेल में बता दूंगा। लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है? लीनियर मैग्नीफिकेशन बेसिकली थ्योरी नहीं आती है, बहुत कम आती है, आपको जानना है तो फार्मूला दैट इज़ I/no लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर V/u, ये होता है लीनियर मैग्नीफिकेशन फार्मूला। और आपको जानना है पावर ऑफ लेंस क्या होता है? द डेविएशन ऑफ द इंसिडेंट लाइट रेज प्रोड्यूस्ड बाय लेंस ऑन रिफ्रैक्शन थ्रू इट इज़ मेजर्ड बाय इट्स पावर, एंड पावर ऑफ अ लेंस इसको डायोप्टर कहते हैं, एंड दैट इज़ P = 1/f, दैट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ आर फोकस लेंथ। नेक्स्ट है हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास। तो मैग्नीफाइंग ग्लास में मैग्नीफाइंग ग्लास का रे डायग्राम, मैग्नीफाइंग पावर होती है दैट इज स्मॉल m = 1 + d/f। ये और एप्लीकेशंस हैं कुछ, वो आपको पढ़ लेने हैं, ज़्यादा इससे कुछ है नहीं, थ्योरी वाला चीज़ आता है बस।
अब हम लोग बात करने वाले हैं स्पेक्ट्रम की। सो स्पेक्ट्रम, द बैंड ऑफ कलर्स सीन ऑन पासिंग वाइट लाइट थ्रू अ प्रिज्म इज नोन एज स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम के साथ एक फिनोमेना और आ जाता है डिस्पर्जन या डिस्पर्जन ऑफ लाइट का। सो द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट बाय अ प्रिज्म इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज नोन एज डिस्पर्जन। तो न्यूटन का एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने ये चीज़ की थी, तो उन्होंने इसी से कंक्लूजन निकाल लिया था विबग्योर का। तो एक विबग्योर ले आए थे वो, जहाँ पे वी मतलब वायलेट होता है, आई मतलब इंडिगो, बी मतलब ब्लू, जी मतलब ग्रीन, वाई मीन्स येलो, ओ मीन्स ऑरेंज एंड रेड, आर मीन्स रेड। सो cause of dispersion of white light into formation. So the cause of white light is the change in speed of light with wavelength. When the white light enters the first surface of prism, the light of different colors due to their different speeds in glass gets deviated through different angles towards the base of the prism. That's why here the phenomena dispersion or splitting arises of white light into its constituent colors takes place at the first surface of prism. The violet color is deviated the most while the red color is deviated the least. Therefore the light of different colors follows different path in glass and then strikes the second surface of prism. On the second surface of prism only refraction takes place and different colors are deviated through different angles. तो ये आपको समझ में आ गया। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जो आपको पढ़ना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में गामा रेज हैं, एक्स रेज है, अल्ट्रा वायलेट है, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स, और इनके बारे में डिटेल में एक चार्ट है। उस चार्ट में आपको जो जो चीज़ें दी हैं वो आपको पढ़ना है। थ्योरी में कुछ आ जाता है। अच्छा, v इक्वल टू एफ लैम्डा मैंने आपको पहले पढ़ाया था। यहाँ पे वो जो v है वो c से बदल जाता है, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। तो c इक्वल टू एफ लैम्डा हो जाता है, यहाँ पे v का रोल ख़त्म हो जाता है इन केस ऑफ आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। नाउ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज़ द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड देन री इमिशन ऑफ लाइट एनर्जी। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बेसिकली कुछ फिनोमिना है जो ज़रूर आते हैं आपके, जैसे रेड कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट, वाइट कलर ऑफ स्काई एट नून, ब्लू कलर ऑफ स्काई, ब्लैक कलर ऑफ स्काई इन द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, वाइट कलर ऑफ क्लाउड्स, यूज़ ऑफ रेड लाइट फॉर डेंजर सिग्नल्स। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आपको मतलब पढ़ लेनी है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब इसके प्रॉपर बुक में दिए रहते हैं, डिटेल आपको मतलब पढ़ना है। गिव रीजंस टाइप में आ जाता है। एंड इसी के साथ स्टूडेंट्स आपका पूरी लाइट की यूनिट ख़त्म हो गई है। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज। एंड थैंक यू स्टूडेंट्स। न्यूमेरिकल्स की वीडियो अलग से आएगी। थैंक यू।